why and how, the importance and different uses of word in a shotgun shell. شکار کے ہر سیزن میں شوقین شکاری حضرات سیزن سے پہلے اور سیزن کے درمیان لاکھوں کروڑوں روپے کے کارتوس خریدتے ہیں، ان کو سیزن کے درمیان چلاتے ہیں اور شکار سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا، غور کیا کہ آپ کیا خریدتے ہیں اور کس قسم کے شکار کے لیے کون سے کارتوسوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور کیوں؟ کیا کبھی آپ نے خریدے ہوئے کارتوسوں کی حیت پر غور کیا؟ ان میں پڑا ہوا پے لوڈ یا بارود کا وزن کتنا ہے؟ چھروں کا قطر اور چھروں کا وزن کتنا ہے؟ ان کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والا بورڈ یا ٹکلی یا باسکٹ کس قسم کی ساخت اور کس مقصد کے لیے استعمال کی گئی ہے؟ بہت سو کے لیے شاید کبھی نہیں، اور چند ایک کے لیے ہمیشہ۔ شاید بہت کم شکاری حضرات ایسے ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے مقصد اور استعمال کے کارتوس خریدتے ہیں اور شکار میں ان کا ہٹنگ ریٹ ہمیشہ برقرار رہتا ہے، جبکہ یقیناً 90% لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے کی غلط منتخب کیے ہوئے کارتوس ہوا کی نظر کرتے ہیں۔ ان کا ایوریج ہٹنگ ریٹ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان میں یقیناً بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو شاٹ گننگ اور شاٹ کرنے میں مہارت بھی حاصل ہے اور وہ اچھے شکاری، اچھے کھلاڑی بھی ہیں، لیکن پھر بھی غیر متوازن کارتوسوں کی وجہ سے ہر شکار میں ان کا ہٹنگ ریٹ کم ہوتا ہے۔ یہاں چوائس بھی نہیں، بازار میں جائیں، ایک ہی قسم کی ساخت کے مختلف نمبرز کے کارتوس موجود ہیں جن کا پے لوڈ تو مختلف ہوتا ہے، لیکن اندرونی ساخت اور اس میں انتہائی اہم کمپوننٹ یعنی ویٹ ایک ہی قسم کا استعمال ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ریگولر کارتوس خریدتے ہیں جو ہلکے پے لوڈ کے ہیں، کچھ کو سپر برانڈ پسند ہے اور کچھ ایکسل کارتوس خریدتے ہیں۔ ان سب کا پے لوڈ مختلف ہے، لیکن اندرونی ساخت 100% ایک ہی جیسی ہے۔ ایک ہی قسم کا ویٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ ویٹ ٹکلی یا باسکٹ کی کیا اہمیت ہے؟ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آج تک کے جتنے آپ نے کارتوس چلائے اور شارٹس کے کچھ ہدف پہ لگے، کچھ زیادہ تر یقیناً بڑی تعداد میں ضائع ہوئے۔ کچھ ایسے شارٹس بھی جو آپ کی طرف سے 100% درستگی کے ساتھ کیے گئے اور ضائع ہوئے، وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اس کی الہامی وجوہات کے علاوہ ٹیکنیکل وجوہات یقیناً ہو سکتی ہیں جن کو ہر شکاری کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور اگر میری اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی نہ سمجھ سکیں تو یقیناً یہ سلسلہ جاری ہی رہ سکتا ہے۔ خاص کر کارتوس کے شیل میں ویٹ، ٹکلی یا باسکٹ کی اہمیت۔ میں ذاتی طور پر یہ کوشش کر رہا ہوں کہ عام فہم زبان میں ہر شکاری کو یہ انتہائی ضروری معلومات دے سکوں کہ شاٹ گن کے ایک شیل کی کیا اہمیت، ساخت اور استعمال کیوں، اور ہر قسم کے شکار میں یہ کیسے کارآمد ہو سکتا ہے۔ ایک شارٹ شیل بورڈ پلاسٹک کا بنا ہوا ٹکڑا، کاغذ یا فیلٹ جو چھروں کے حل یا پول کے اندر رکھا جاتا ہے، بہت سے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ یہ بیرل کو نقصان سے بچاتا ہے، کشن پے لوڈز میں مدد کرتا ہے تاکہ پائلٹس کی خرابی کم ہو۔ مختصر طور پر
पे लोड को इस वक्त तक बरकरार रखता है जब तक कि ये बैरल में मौजूद ना हो। और सबसे अहम बात, गन पाउडर को शॉट से अलग करता है। वॉट के बगैर जदीद शॉटगन ठीक से काम नहीं कर सकती। वर्ड्स स्पेसर के तौर पर भी काम करते हैं। प्रोपेलेंट और शॉट चार्जेस के लिए सही हुजम सेट करते हैं और कंप्रेशन के साथ छर्रों को बैलेंस रखने के लिए कुशन का काम भी करते हैं। शॉटगन्स और जोब्स की तरह शॉट शेल और वेड टेक्नोलॉजी का इर्तका जारी है। और चूँकि आपको मट्टी की स्कीट को तोड़ने और ज़िंदा जानवरों या परिंदों को मारने के लिए एक अच्छी तरह से डिज़ाइन शुदा पैलेट्स के पैटर्न की ज़रूरत है, यहाँ पर एक गहरी नज़र है कि डिस्चार्ज होने और बैरल से बाहर निकलने के बाद छर्रों की चादर की तामीर की अहमियत और वो कैसे काम करते हैं। प्लास्टिक पावर पिस्टन वैड्स 1958 में वन पीस वैड ईजाद करने के लिए बहुत से क्रेडिट रोनाल्ड कामरफोर्ड को जाते हैं। इसने अपने ज़्यादा पाउडर कप के साथ शॉट को गर्म प्रोपेलेंट गैसों से महफूज किया और शॉटगन के बैलेंस के लिए एक कप का इस्तेमाल किया, यानी बास्केट, जिसके दरमियान टूटने वाले खलियों की एक तह के साथ शॉट की खराबी को रोका गया। जब 1990 की दिहाई में बत्तख के शिकार करने वालों के लिए स्टील शॉट्स, स्टील पैलेट्स लाजमी करार दिया गया तो वेड्स को मोटे प्लास्टिक से बनाना पड़ा, क्योंकि स्टील प्लेट्स अपने मुकाबले में बैरल की हल्की सतह की दीवारों से रगड़ता है, यानी स्टील से बने हुए छर्रे बैरल की हल्की सतह की दीवारों को रगड़कर खराब करते थे या कर सकते हैं। आज कंपनियां तमाम गेज और मकासद के लिए दर्जनों मुख्तलिफ प्लास्टिक के वेड्स तैयार करती हैं। सख्त स्टील शॉट से शिकार करने से लेकर स्पोर्टिंग क्ले वेड्स तक जो नरम लीड शॉट या शीशे के छर्रों को इस्तेमाल करते हैं। सबसे आम एक रिवायती 4 पखड़ियों वाला वेड है, जिसमें 4 धारे होते हैं जो वेड के अतराफ में कटे होते हैं और बैरल के मौजूद होने के बाद फूल की तरह सामने से खुलते हैं। 3 पंखड़ियों वाले वेड भी हैं। रेयर ब्रेकिंग वेड्स में वेड्स की बुनियाद पर सिल्ट होते हैं, पंखड़ियों के पीछे से खुलते हैं, जबकि ये छर्रे बास्केट से निकलते हैं। इन रेयर ब्रेकिंग वेड्स का मकसद शॉट कप में शॉट को सख्त पैटर्न के लिए ज़्यादा देर तक बरकरार रखना है। मुख्तलिफ पे लोड्स को एडजस्ट करने के लिए एक कम सतही या गहरे शॉट कप के साथ भी वेड्स बनाए जा सकते हैं। ख़ास तौर पर तैयार करदा प्लास्टिक से जो सर्दी में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। चिकनी प्लास्टिक की सतहें, जिसके नतीजे में बैरल की कम फाउलिंग होती है और बहुत कुछ। जैसे ही शॉट चार्ज 900 मील फी घंटा से ज़्यादा रफ्तार से अपने हदफ की तरफ बढ़ता है, एक सॉसेज की शक्ल का छर्रों का बादल फैला हुआ और पे शॉट स्टर्लिंग लड़ियों की शक्ल में चौड़ा होता है। सिर्फ तेज़ रफ्तार कैमरे के ज़रिए ही शॉट स्ट्रिंग्स या छर्रों की चादर की तस्वीर कशी की जा सकती है या नज़र आ सकते हैं। आम तौर पर छर्रों की ये चादर औसतन 7 फीट लंबी होती हैं और शादो नादिर ही 4 फीट से छोटी होती हैं।
एक ही प्रोजेक्टाइल की ताकत से हदफ को निशाना बनाने के बजाय शॉर्ट स्ट्रिंग कई बार असरअंदाज होती हैं। पैलेट स्ट्राइक एक दूसरे के माइक्रो सेकंड के अंदर होते हैं, करीब करीब। ज़्यादातर शिकारी कारतूस छोटे शॉर्ट स्ट्रिंग के होते हैं जो अपलैंड गेम गनिंग में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रिंग या चादरें छर्रों की कम फैलाव के टाइट पैटर्न के भी होते हैं, जो एक अच्छी चीज़ होती है। अगर आपका पेलोड बहुत टाइट पैटर्न का है, जो एक गोली की मोटाई के साथ एक चपटे दायरे की चादर के तौर पर उड़ते हुए परिंदे पर पहुंचा, तो आपको राइफल जैसी दुरुस्तगी के साथ शॉट गन से निशाना मारने की ज़रूरत होगी। अगर आप बत्तख, फेजेंट या दूर से जाती हुई बड़े साइज की बत्तख या काज गीज का शिकार कर रहे हैं, जहां आप शॉट गनिंग की थर्ड टेक्निक लीड शूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और बर्ड से कदरे आगे शॉट कर रहे हैं, तो यकीनन इस किस्म का शॉर्ट स्ट्रिंग पैटर्न आपके लिए कारामद है। शॉर्ट शेल टेक्नोलॉजी का इर्तका जारी है। हालांकि बड़ी पेशरफ्त दहाइयाँ पहले पहुंच चुकी थीं, लेकिन बैलिस्टिक इंजीनियर्स जदीद बैट्स को ठीक करना जारी रखते हैं। ये एक कुदरती ज़रूरत है, क्योंकि बेहतर कारदगी के खोल और नए पाउडर सामने आते हैं। शूटर मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल के शॉर्ट शेल की पेशकशों से या एडवाइजेस से बेहतर नमूनों और जदीद टेक्नोलॉजी से बने हुए शॉर्ट शेल्स से इस्तिफादा करेंगे। बस याद रखें कि शेल के अंदर प्लास्टिक के इस टुकड़े के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा।